Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative video series on the mathematical topic of triangles. These videos cater to students studying in Class 10 across various boards like CBSE, Maharashtra State Board, and others. The series aims to provide a comprehensive understanding of the subject, covering essential concepts such as the basic proportionality theorem, theorems on similarity, and congruency. The tutorials focus on simplifying complex topics and breaking them down into easily digestible segments. By offering step-by-step explanations and examples, Ignited Minds Tutorials ensures that students can grasp the concepts with clarity and confidence. The videos also incorporate visual aids, diagrams, and interactive exercises to enhance the learning experience. Understanding triangles is crucial as they form the foundation of geometry and have practical applications in real-life scenarios. Whether it's calculating the length of a side, determining angles, or solving problems involving triangles. This video series equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills. Ignited Minds Tutorials' dedication to providing quality education shines through in their instructional videos. Their commitment to helping students succeed in mathematics is evident in the meticulous explanations and emphasis on conceptual understanding. With this series, students can ignite their minds, overcome challenges, and excel in the world of triangles and mathematics. Okay, चलिए भाई साहब, D, E, F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and CA of a triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and ABC. Find the ratio of the areas. तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है भाई साहब? देखो यहाँ पे दिया हुआ है गिवन, ठीक है, D, E and F are midpoints. D, E and F are midpoints of AB, BC and AC. ठीक है, D, E and F are midpoints of AB, BC and AC. ठीक है, ओके. टू फाइंड, यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF तो that of area of triangle ABC. ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. चलिए भाई साहब, करना है इसको फटाफट फटाफट. कैसे करेंगे? हो गया?
देखो सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा। यहां पे डी ई, चलो पहले हम लेते हैं इसको, देखो देखिए डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? मिड पॉइंट थ्योरम है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका हो गया भाई साहब मिड पॉइंट थ्योरम, समझ में आ रहा है? ठीक है, डी और एफ क्या है? मिड पॉइंट्स है। द लाइन जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। नाउ हाफ ऑफ बी सी इज बी ई, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू बी ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे डी एफ और बी सी क्या है भाई साहब? डी एफ और बी सी, बी ई, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सॉरी ये डी एफ, और यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डी एफ इज पैरेलल टू बी ई, क्योंकि भाई साहब क्या है? डी ए जो है पैरेलल टू बी सी है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा? डी बी ई एफ, डी, तो क्वाड्रिलेटरल डी बी ई एफ ये क्या हो जाएगा बोलो? इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? क्यों बताइए, रीजन क्या हो जाएगा? इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट्स अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे अपन लिखेंगे रीजन, इफ अ पेयर ऑफ opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram, it's a parallelogram. If a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, देन ऑफ कोर्स इट्स अ पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो? सो द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या भाई साहब? डी बी ई डी एफ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, क्योंकि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it, the diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भाई साहब बराबर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? एरिया ऑफ ट्राइंगल CEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बोलो? DEF, ठीक है, CEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DFE, ऐसा बोल सकते हैं। और सिमिलरली इसका भी बोल सकते हैं, देखो ये वाला भी तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? AEDF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DFE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DFE, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, एडिंग 1 2 and 3, ठीक है। तो एडिंग 1 + 2 + 3, ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, डी बी ई प्लस सी ई एफ, डी बी ई प्लस सी ई एफ प्लस ये प्लस 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 यहाँ पे एक और. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ई, ये तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई के बराबर ही होगा ना भाई साहब. ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमने ये लिख दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई. तो एडिंग 1 + 2 + 3 एंड 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे, इसको 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 और इसको, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी इन चारों को ऐड करो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ ई कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई. ठीक है, समझ में आ रहा है ये. तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा ये. दिस विल बी 1/4. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. हम यहाँ पे हमने कोई भी सिमिलैरिटी का थियरम यूज नहीं किया है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल से इसको प्रूव किया है. ठीक है, हाँ हमने बीपीटी थियरम यूज किया यहाँ पे, बट अदरवाइज हमने पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल से इसको प्रूव कर दिया है. ठीक है, क्लियर है. ओके 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 ओके. तो यहाँ पे देखो, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं अपन, कैसा मेथोडोलॉजी दिया हुआ है यहाँ पे. ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें डी ई और एफ, ये हो गया भाई साहब आपका डी ई और एफ हो गया मिड पॉइंट्स. ठीक है, ओके. सो अपन ने भाई साहब क्या बोला, टू फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ टू ट्राइंगल ए बी सी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी भाई साहब क्या हो गया, डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए. तो डी ई और एफ क्या हो गया, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ओके. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो डी एफ बाई बी सी ये कितना हो जाएगा, 1/2. ठीक है, इसी तरह से डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए. समझ में आ रही है. तो डी ई बाई सी ए, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से आपका डी ई क्या हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, मतलब डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू 1/2. इसी तरह से डी ई बाई सी ए इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, इसी तरह से भाई साहब आपका एफ ई बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2 है ना. ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी. तो ई एफ बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये आपने 3 इक्वेशंस निकाल लिए. ठीक है, ओके. अभी भाई साहब अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू इज बेसिकली a line segment intersecting AB at P and AC at Q such that PQ is parallel to BC if PQ divides triangle ABC into 2 equal parts equal in area. तो PQ जो है तो ट्राइंगल ABC को डिवाइड कर रहा है 2 equal in area, मतलब ये वाला पोर्शन एरिया का और ये वाला एरिया का पोर्शन बराबर है. चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब. देखो पहली बात तो तुम ये प्रूव कर लो कि ए पी क्यू और ए बी सी क्या है, सिमिलर हैं. कैसे, तो इन ट्राइंगल्स सीक्वेंस सही लिखना है तुमको, ए पी क्यू एंड ए बी सी. ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, कॉमन एंगल. ठीक है, और क्या है बोलो, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. समझ में आता है भाई साहब. तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. क्या ये समझ में आ रहा है. रीजन ए टेस्ट या ए क्राइटेरिया, समझ में आ रही है. ठीक है, ओके. अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड करने दिया है? बी पी बाई ए बी ना, ओके। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर अपॉन ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। रीजन, द रेशियो ऑफ एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर triangles, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares. The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. AP स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, देखो यहाँ पे दिया है, इक्वल इन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा भाई साहब? PQCB, PQCB, समझ में आ रहा है? ये वाला PQ लाइन दोनों को इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ किसके बराबर होगा? PBCQ के बराबर या PQCB के बराबर, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी अपन ने क्या कर दिया, दोनों पे एडिंग यहाँ पे देयरफॉर अगर हमने यहाँ पे एडिंग, अगर हम यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? PQCB, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ABC, है कि नहीं? या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एडिंग ना लिख के, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अभी यहाँ पे PQCB है, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे PQCB की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? PQCB APQ ही है, ठीक है, तो इसके जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ये 1 और ये हो गया 2, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, so that will be how much? Twice area of triangle APQ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये कितना हो जाएगा बोलो? ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, है ना, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये आपका है इक्वेशन नंबर 3 और लेट्स से ये है भाई साहब इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो फ्रॉम 3 and 4 अपन क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 3 and 4 यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डाला और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, दिस विल बी इक्वल टू
ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर. तो दिस विल बी हाउ मच, 1/2 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर. ठीक है, तो ए पी बाई ए बी कितना हो जाएगा बोलो, ए पी बाई ए बी विल बी इक्वल टू 1/√2 अपन लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, ए पी बाई ए बी. अभी आपने को क्या करना है भाई साहब, बी पी निकालना है. ठीक है, ओके. तो अगर अपन ने यहाँ पे 1 से दोनों को माइनस किया, ठीक है, सब, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2. subtracting both sides by 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 लिख सकते हैं, बोलो ऐसा है ना. अभी इसको करते हैं, देखो यहाँ पे ए बी, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, देखो बी पी चाहिए, और बी पी कैसे आएगा, ए बी माइनस ए पी से. तो यहाँ पे देखो ए बी माइनस ए पी अपॉन ए बी, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, √2 माइनस 1 अपॉन √2. तो ए बी माइनस ए पी कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी, ये हो जाएगा आपका पी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2. ठीक है, पी बी बाई ए बी विल बी इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2. ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. तो आंसर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 अपॉन √2. ठीक है, तो ये अगर 10 है तो ये भी भाई साहब 10 होगा, ऐसा ही है ना. तो ये 20 होगा. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. जो मैंने आपको प्रूव करके बताया, यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू बाई ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 1/2. ठीक है, एंड यहाँ पे आपका भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ए पी क्यू और ए बी सी आपके सिमिलर हो जाएंगे. तो एरिया ऑफ ये हो गया ए पी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, तो 1/2 इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू ए पी बाई ए बी. अभी दोनों को भाई साहब अपन ने क्या कर दिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट. ठीक है, 1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ए पी बाई ए बी ये हो गया 1/, तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये कहाँ से आ गया, ये गलत है भाई साहब, ऐसा कैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया. अच्छा, इसको ए बी माइनस बी पी किया. ठीक है, ए पी लिखा हुआ है ना, तो ए बी माइनस ए बी, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 1 माइनस बी पी, वही आएगा देखो, 1 माइनस 1/√2. तो दिस विल बी √2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2. ठीक है, ये क्या है, इतना बड़ा क्या है भाई साहब, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, वही आंसर आएगा देखो, √2 माइनस 1 अपॉन √2. ठीक है, ओके. थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स. राइट एंगल ट्राइंगल्स में क्या है भाई साहब, इन राइट एंगल ट्राइंगल इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज. अगर यहाँ से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, समझ में आ रहा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the triangles on either side of the perpendicular are similar to the original triangle. मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है देखो, ए एक्स बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एक्स बी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, एंड ट्राइंगल यहाँ पे बी एक्स सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, ये आपको करना है भाई साहब, क्लियर है. चलिए प्रूव करने की कोशिश कीजिए फटाफट. कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, देखो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये दिया हुआ है आपको, है ना. तो आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला भाई साहब, ये डाला भाई साहब आपने परपेंडिकुलर, लेट्स से ये आपका एक्स है. ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला है. ठीक है, देन द ट्रायंगल्स ऑन ईदर साइड, द ट्रायंगल्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल ए बी सी से. तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, ट्रायंगल कौन सा, ए एक्स बी, ट्रायंगल ए एक्स बी, ये भाई साहब ए बी सी के साथ सिमिलर होगा. ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी. सीक्वेंसिंग देख लो भाई साहब, यहाँ पे ए दोनों में सही है, और यहाँ पे एक्स राइट एंगल है और यहाँ पे बी राइट एंगल है, सिमिलर हो गया. और क्या है बोलो, आपका ये वाला बी एक्स सी किसके साथ सिमिलर होगा भाई साहब, ट्रायंगल
किसके साथ सिमिलर होगा? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, सी और सी यहाँ पे बराबर है। देखो बहुत आसान है प्रूव करना, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा बोलो? एंगल ए और एंगल ए बराबर है दोनों में। कौन से में? देखो ध्यान से देखना, ए एक्स बी और ए बी सी, एंगल ए दोनों में बराबर है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए वाई, सो दिस इज बेसिकली अ कॉमन एंगल, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल ए एक्स बी, एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वाई, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए एक्स बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन ए टेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। इस पे आते हैं, बोलो बी एक्स सी, ठीक है, एंगल बी एक्स सी। तो आपके इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर? बोलो ट्राइंगल बी एक्स सी, तो एंगल बी एक्स सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, अगेन कॉमन एंगल, ठीक है। यहाँ पे बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर ट्राइंगल बी एक्स सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? ए टेस्ट, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? अच्छा, इन दोनों को मिलाकर हम कुछ बोल सकते हैं। देखो ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे? बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ए एक्स बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एक्स सी। सीक्वेंसिंग आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, सीक्वेंसिंग भाई साहब आपकी सेम होनी चाहिए। इससे आता है आपका एक थ्योरम जिसको अपन भाई साहब राइट एंगल में थ्योरम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों को देख रहे हो भाई साहब? ये दोनों क्यों सिमिलर हो गए? बिकॉज बोथ आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना। ये सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अभी आप कर लो भाई साहब, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए एक्स बाई बी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स सी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो भाई साहब, एक्स बी, ये आपका बी एक्स और ये एक्स बी, इन दोनों को उठा लो, ठीक है। तो आपका कितना बन रहा है? देखो ए एक्स, ए बी एक्स को अपन एक्स बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एक्स बाई एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स सी, ठीक है, एक्स सी। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स सी, ठीक है। तो इसी थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं? right in a right angle triangle, if a perpendicular is drawn from the right angle to the hypotenuse, the square of the length of the perpendicular is equal to the product of the proportion in which it divides the hypotenuse, ठीक है, in which it divides the hypotenuse। तो ये जो एक्स बी स्क्वायर होगा, ये जो एक्स बी स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा? ए एक्स इंटू एक्स सी के बराबर, ए एक्स इंटू एक्स सी के बराबर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला थ्योरम है। तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये आप बोल सकते हो ये सिमिलर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए बी सी ए डी बी के और बी डी सी के सिमिलर हो गया, ठीक है। ट्रिक फॉर नेमिंग द थ्री ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द फिगर, ठीक है। तो आप कैसे करोगे भाई साहब? राइट द नेम ऑफ द बिगर ट्राइंगल। देखो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक को क्या करना है, देखो खैर चलो देख लेते हैं। ए बी सी पहले अपन ने लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? व्हाट इज द ट्रिक? राइट द नेम ऑफ द बिगर ट्राइंगल विथ द राइट एंगल बी इन बिटवीन देम। तो बड़े वाले ट्राइंगल में आपने राइट एंगल को बीच में लिखा है, ए बी सी, ठीक है। अभी हम से दिस विल गिव अस द नेम ऑफ द सेकंड ट्राइंगल। तो आपका सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल ए और ये डी बी, ठीक है, ए डी बी। और पिकअप द फोर्थ पॉइंट डी एंड प्लेस इट बिटवीन द फर्स्ट टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में ये डाल दिया भाई साहब, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? ये ट्राइंगल बी, ठीक है, डी सी, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज हाउ इट विल बी। नाउ प्लेस द फोर्थ पॉइंट डी। तो आपका देखो यहाँ पे पहले अपन ने क्या किया? ए बी सी लिख दिया विथ बी इन बिटवीन,
फिर अपन ने फोर्थ पॉइंट डी को इनके बीच में लिखा, किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट को बी और सी के बीच में लिखा, इस तरह से लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ए बी सी आपने पहले लिखा, ट्राइंगल ए बी सी, फिर आपने भाई साहब फोर्थ पॉइंट को ए और बी के बीच में लिखा, फिर आपने देखो आप क्या ले रहे हैं, पहले ए और बी ले रहे हैं, ठीक है, और इसके बीच में डाल रहे हैं, फिर क्या ले रहे हैं, ए और सी ले रहे हैं, सॉरी बी और सी ले रहे हैं, और इसके बीच में फोर्थ पॉइंट को डाल रहे हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट को एक बार आपने ए और बी के बीच में डाला, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट को एक बार आपने बी और सी के बीच में डाला, ठीक है, क्लियर है। दिस इज हाउ इट विल बी। तो आपका देखो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बताओ फटाफट, तू बता। ट्राइंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू, ट्राइंगल बोलो, तो आपका यहाँ पे पी एम क्यू, तो अपन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लेंगे और इसके बीच में फोर्थ पॉइंट डाल देंगे। फिर अपन क्या लेंगे भाई साहब, क्यू आर लेंगे, ठीक है, तो क्यू एम आर, समझ में आ रहा है ये, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। फिर अपन क्या लेंगे, सेकंड और थर्ड लेंगे और उसके बीच में एम को ठूस देंगे, ठीक है, दोनों में हमको एम को ठूसना है। एक बार अपन फर्स्ट और सेकंड के बीच में एम को ठूसेंगे और एक बार अपन सेकंड और थर्ड के बीच में एम को ठूसेंगे, ठीक है, ये आपकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका पी क्यू आर, पी एम क्यू, और ये हो गया आपका भाई साहब क्यू एम आर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन। इसका बताओ, ऐ आरुष बता, फटाक से बता, फटाक से बताना है। पहला बड़ा वाला ट्रायंगल लो, एल एम एन, इसी सीक्वेंस में लिखना है, ट्रायंगल एल एम एन, बोलो भाई साहब अभी एल पी एन, बहुत बढ़िया, एल पी एन, ठीक है, ये जो आपने पपड़ी को डाला है। फिर नहीं एम, देखो पहले क्या किया, एल एम को उठाया, सॉरी एल पी एम, सॉरी, ठीक है, एल एम को उठाया और उसके बीच में पी को ठूसा। अभी क्या करेंगे, एम एन को उठाएंगे और उसके बीच में पी को ठूसेंगे, तो एम पी एन, क्या ये समझ में आ रहा है। पहले अपन एल एम को उठाएंगे और उसके बीच में पी को ठूसेंगे, फिर उसके बाद तो एल पी एम हो गया, फिर अपन एम एन को उठाएंगे और उसके बीच में पी को ठूसेंगे, तो एम पी एन, ठीक है, ये ट्रिक्स है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो एल एम एन, ये हो जाएगा भाई साहब एल पी एम, और ये हो जाएगा भाई साहब एम पी एन, ठीक है, ओके। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, अब इसको प्रूव करना है, कर सकते हैं भाई साहब, मैंने प्रूव करके दिया है आपको, फिर भी कर लीजिए फटाफट, हो गया डन। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल क्यू पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बोलो क्या हो जाएगा, क्यू और पी के बीच में अपन एम को ठूसेंगे, ठीक है, और फिर पी और आर के बीच में, तो यहाँ पे भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं, पी और आर के बीच में अपन एम को ठूसेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अभी अपन भाई साहब इन दोनों ट्राइंगल्स को, देयरफॉर इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम उठाते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्यू एम बाई पी एम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बोलो, एम पी बाई एम आर, है कि नहीं, एम पी बाई एम आर इज इक्वल टू क्यू पी बाई पी आर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब आपका, ओके। तो इस एम पी को अपन क्या लिख सकते हैं, इस एम पी को अपन पी एम लिख सकते हैं कि नहीं, वी कैन राइट दिस एज पी एम, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हमने उठाया तो यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, हैंस अप्रूव्ड, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका, क्लियर है, ओके। सो अपन यहाँ पे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी फिर से अगर हमको प्रूव करना है तो अपन ऐसा प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, ठीक है, then triangle on both sides are similar to each other and to the whole triangle as well, ठीक है। तो आपका भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, तो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ए से भाई साहब ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, आपको ये सब प्रूव करना है भाई साहब,
तो क्या करेंगे पहले बताइए, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, बी ए डी, ठीक है, ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू, बोलो कौन सा, इस ट्राइंगल बी और ए के बीच में कौन आ जाएगा अभी, सी, तो ट्राइंगल बी सी ए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, बी और ए और डी के बीच में सी है ना, ए सी डी। अपन रीजन क्या लिखेंगे, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल, फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ right angled triangle to its hypotenuse, then the two triangles so formed are similar to each other and to the ओरिजिनल राइट एंगल, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब अभी अपन यहाँ पे ए बी स्क्वायर लेना है ना, तो ए बी स्क्वायर तुमको कहाँ से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा देखो, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल बी ए डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, बी ए by BC, BA by BC will be equal to AD by CA, AD by CA will be equal to BD by BA, BD by BA, ठीक है, क्लियर है। क्या रीजन देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अभी इन दोनों को उठाओ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BA का स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए बी का स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अपन लिख सकते हैं भाई साहब, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, डन। अभी भाई साहब क्या लेना है, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है देखो इन दो ट्राइंगल में, तो यहाँ पे लेते हैं अपन इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, इन ट्राइंगल्स बी सी एंड ए सी डी, बी सी ए एंड ए सी डी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भाई साहब, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, सी ए अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू बी ए अपॉन ए डी, तो बी ए अपॉन ए डी, ठीक है। अपने को क्या लेना है भाई साहब, ए सी का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये दोनों को अगर हमने लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू सी डी हो गया भाई साहब आपका, ये ए सी का स्क्वायर बी सी इंटू सी डी हो गया, ठीक है, ओके। अभी अपन कौन सा लेंगे भाई साहब, ए डी का स्क्वायर, तो अपन ये दोनों ट्राइंगल्स को उठा लेते हैं, ठीक है। तो अपने को मालूम है ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, बी ए बाई ए सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, देखो ए डी का स्क्वायर चाहिए, ए डी का स्क्वायर इन दोनों रेशियो से तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ए डी इंटू ए डी हो गया, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ठीक है। सो इस तरह से अपन तीनों को प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सो प्रूफ इन ट्राइंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, सिर्फ इतना बोलना है आपको कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, तो अपन ये बोल देंगे सीधा, ठीक है। रीजन क्या देंगे, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other, perpendicular are similar to each other and to the whole triangle and to each other, ठीक है। So if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle or from the right angle of a right angle triangle to the hypotenuse, then it divides it into two triangles of similarity, ठीक है, two similar triangles and these two triangles are similar to the original triangle. If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular
बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अभी हम फटाफट यहाँ पे भाई साहब एक एक रेशियो निकालेंगे। तो इसमें आपने निकाला बी सी बाई बी ए इज इक्वल टू दिस, तो आपका यहाँ पे बी सी ए बी स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका ए सी स्क्वायर, फिर आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे दिस विल बी ए डी स्क्वायर। क्लियर है? ओके ओके ओके, कौन सा खत्म हुआ रे बाबा? 10। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। आपको ये प्रूव करना है, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। चलिए फटाक से, हो गया? अरे डन 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 डन। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? तो अपना पहले क्या हो जाएगा भाई साहब, पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपने को क्या दिया हुआ है भाई साहब, गिवन। ठीक है, सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो ना बोलो, ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू, ए और सी के बीच में अभी क्या आ जाएगा, डी है ना, ए डी बी एंड दिस इज बेसिकली सिमिलर टू भाई साहब सी और बी के बीच में क्या आ जाएगा, डी, तो सी डी बी। ठीक है, रीजन क्या देंगे, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, then the two right angles formed then the two triangles formed
on each side are similar to the original triangle and to each other, ठीक है, and to each other, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया। अभी अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AC बाई AD, है ना भाई साहब, AC बाई AD इज इक्वल टू CB बाई DB, ठीक है, इज इक्वल टू AB बाई मैंने कुछ गलत लिख दिया भाई साहब, क्या गलत हो गया है, ACB, यहाँ पे C होगा ना, ये भाई साहब होगा आपका C, दिस विल बी C, तो A और C के बीच में D और भाई साहब C और B के बीच में, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका AC बाई AD इज इक्वल टू CB बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC, ठीक है, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके ओके ओके, यहाँ पे तो एक ही BC का दिख रहा है भाई साहब, BC और क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे इन दोनों में, इस तरह से नहीं होगा यार, BC का स्क्वायर अपॉन therefore triangle ACB is similar to triangle D को बीच में डालेंगे और A और C को इधर लिखेंगे ना, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल आपका C और B और बीच में डालेंगे D, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू ADC ना, तो AC स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है, ओके ओके ओके। फायदा क्या हुआ सब ऐसा, इन दोनों में आते हैं, देखो ये आपको समझ में आ रहा ना, the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the areas of the corresponding sides, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा भाई साहब CDB, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, AC का स्क्वायर बाई CB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बाई CB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर बाई DB का स्क्वायर, DC का स्क्वायर बाई DB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर DB का बाई DC का स्क्वायर, AC अपने को भाई साहब यहाँ पे क्या चाहिए, DC का स्क्वायर बाई DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बाई CD का स्क्वायर ना, यहाँ पे आ रहा है क्या BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ओके। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, DB का स्क्वायर अपॉन DC का स्क्वायर, ठीक है, DC का स्क्वायर, ओके ओके ओके।
और डी सी का स्क्वायर कितना होता है, तो डी बी का स्क्वायर अपॉन डी सी का स्क्वायर अपन ने अभी देखा कितना होता है, बोलो ए डी इंटू डी बी, है कि नहीं। तो एक डी बी और डी बी कैंसिल हो गया भाई साहब आपका डी बी अपॉन ए डी। समझ में आता हूँ, ठीक है। तो आपको ये वाला उठाना है, कौन सा, ये वाला। तो अपने इसको, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। तो पहली बात तो भाई साहब आपका सी डी का इन दोनों से हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी बी, है कि नहीं। यहाँ पे अपन लिखेंगे भाई साहब, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द right angle to the hypotenuse of a right angled triangle, then the two triangles so formed are similar to the original triangle and to each other ये लंबा चौड़ा भाई साहब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए डी बाई सी डी इज इक्वल टू डी सी बाई डी बी, इसको उठाया भाई साहब आपने, ठीक है। ये वाले दो सिमिलर हैं इसलिए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू ए डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब। ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 1। वैसे भी देखो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी बी, ठीक है, ए डी इंटू डी बी। अभी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन सी डी बी, ए डी सी अपॉन सी डी बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई सी बी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर बाई डी बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बाई सी डी स्क्वायर। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स of their corresponding sides, ठीक है, क्लियर है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। अभी अपन ने भाई साहब इसमें से इसको उठा लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें सी डी स्क्वायर है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इंटू डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं यही उठाया था हमने, नहीं, अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो सी डी, तो यहाँ पे अगर हम इसको उठाते हैं, सो हम इसको उल्टम पुल्टम करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो सी बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, तो डी बी का स्क्वायर अपॉन डी सी का स्क्वायर। इसी रेशियो को देखो, रेसिप्रोकल लिया हुआ है हमने, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी बी के स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। इस सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। डी बी के स्क्वायर पे भाई साहब अपन ने क्या लिखा भाई साहब, यहाँ पे डी बी का स्क्वायर ही रहने दिया, डी बी का स्क्वायर। इस डी सी स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, डी बी इंटू ए डी, अपन ने लिख दिया भाई साहब फ्रॉम वन, ठीक है। तो ये डी बी और ये डी बी भाई साहब कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी, ठीक है, डी बी अपॉन ए डी। बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दिस कैन बी डन एज बी डी अपॉन ए डी। क्लियर है, समझ में आता हूँ भाई साहब, ठीक है, ओके ओके ओके। तो अपन ने किया भाई साहब, ए सी बी, ए डी सी और सी डी बी इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, vertex of the right angle triangle to the hypotenuse, and the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, ठीक है। तो अपन भाई साहब इसको लिख ही सकते हैं, है ना, ए सी स्क्वायर, तो ए अभी इसको अपन ने किया, ठीक है। सो दिस विल बी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी सी स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा,
अभी हम BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपका कैंसिल होकर आ जाएगा कितना भाई साहब, इतना। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके